Is being started. Please wait. Yes, now you all can mark your attendance. At the same time, please let me know whether you can see my presentation. Is the PPT visible to all of you? Please type in the chat box. Yes, thank you so much. So today we have a few kids from our essay online classes. They could not continue their some class because of bad network at the teacher's end. So they are attending this class with us. Okay. And for you people, regular people, in previous session, we could not continue the class because of bad network at my place. So same session, that is session number 41, we will continue today. Okay. And from the beginning only. So now let's check. These are today's topics. As usual, first we'll take vocabulary practice, then we'll take practice of helping verbs. We have already seen them. We will take practice and then one conversation, that is complaining about a faulty equipment. So 7th standard students, what you have to do, whatever I am going to ask, you have to answer in the chat box only. Okay. And the regular English speaking students, they will answer with mic. Okay, आपको mic on करके answer करना है. So let's move. Before starting, please let me know again, is my voice clear? Yeah, thank you, Deepika. Chalo, let's start. See, for vocabulary practice, I have put arbitrarily some things we use or we have in our house. So this first one, I will show you the bigger picture. This is gas stove. Okay. What you have to do? You have to make the sentences using the given word. आपको ये word use करके sentence बनाना है. Okay. तो kids, you can start writing in the chat box. And जो regular students है, you can raise the hand so that I can ask you. Yes, Nalavade madam, please tell us. We use gas stove for cooking. Very good. We use gas stove for cooking. So kids, if you understood how to use this word in a sentence, please write your sentences in the chat box fast. Till then, I will see whether other people are there. Yes, Swati madam, mic on करा. हाँ मॅडम. बोला. गॅस स्टोव्ह हा शब्द वापरून तुम्हाला वाक्य बनवायचे. हाँ, gas stove is a very useful in cooking. ओके, गॅस स्टोव्ह इज अ नाही वापरायचा, इज व्हेरी युजफुल इन कुकिंग और हाँ इन किचन. ओके. हाँ. ओके ओके. देन मेनका मैडम, आपका माइक ऑन करिए. स्वाती मैडम, तुमचा माइक बंद करा. हेलो. नो 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 नो, आपकी आवाज बहुत कट रही है मेनका मैडम. ठीक है, नो प्रॉब्लम. आप अटेंड करिए. बाद में अगर क्लियर हो जाता है आपका नेटवर्क तो आप आंसर कर सकते हैं. ठीक है. ओके मैम. ओके. Yeah. So
We'll see if anybody has written anything. I'm cooking on gas stove. Very good, Deepika. Other kids, you can also write your sentences over here. Okay. Then we'll see the next word. Next word is window. Okay, window. चलिए विंडो से आप सेंटेंस बनाइए. Yes, Varsha madam. We'll do one thing. We have very less students today, so everybody can switch on the mic. Only thing you have to raise the hand. Okay, kids, you can also switch on the mic. सिर्फ अगर आपको आंसर आ रहा है तो आपको hand raise करना है. Then I will ask you to put on your mic. Okay. So Varsha madam, please. Please close the window. Very good. Now Deepika. Ma'am, Yes. the window is open. Very good. Shabash. Anybody else? Swati madam. Window is necessary for air. Air. Very good. Tanvi. Yes, Tanvi. सांगा सेंटेन्स. Please open the window. येस, पण आता दीपिकाने पण आपल्याला सेम ऑलमोस्ट सेम. Please open the window. ओके, थँक यू सो मच. प्रथमेश. नाउ इफ यू आर इन अ क्लास यू हैव टू रिस्पॉन्ड. ठीक है. Mic problem. Okay. Then why are you not writing in the chat box? You can write your sentence in the chat box. Okay. Now the third word. The third word is cake. चलो, you can raise the hand. Yes. नलावड़े madam बोला. I will purchase Dora cake for my child birthday. Very good. I will purchase Dora cake for my child's birthday. Very nice madam. Child's येणार हा, apostrophe s येणार. Then Deepika. Ma'am, Yes. I like chocolate cake. Very good. Very nice. Tanvi. My birthday cake is so beautiful. Very good. My birthday cake is so beautiful. Very good. Then, Swati madam. Okay, Pratha. Cake is my favorite. Chocolate cake is my favorite. Yes, very good. Chocolate cake is my favorite. Then Prathamesh has also written the sentence. We'll see that. I cut the cake at 8 o'clock. Very good. Very good, Prathamesh. Then we'll go for the next word. Our next word is chalo, television. You have to use this word, television. You have to raise the hands so that I will ask you. Television, come on, there are many sentences. I seeing नाही येणार प्रथमेश. I am येणार आणि seeing नाही म्हणत आपण. जेव्हा आपण टेलिव्हिजन बोलतो तेव्हा आपण वॉचिंग हा शब्द वापरतो. वॉच. ओके. जेव्हा आपण टीव्ही पाहतो असं म्हणतोय तेव्हा आपण वॉच हा शब्द वापरतो. WATCH. सो आय एम वॉचिंग टेलिव्हिजन नाऊ. ओके, असं सेंटेन्स येणार. देन दीपिका. I like all programs on television.
Very nice. Good girl. Tanvi, I watch a movie in television. on television, Bala. Okay. I watch a movie on television. Yeah. Yes, Swati madam. Don't see near the TV. Yes. Don't sit near the TV. TV is a short form for television. Okay. Then Varsha madam. We Hello. we saw cricket match on television. We watch. Okay. We टेलिव्हिजन watch. हा हा टेलिव्हिजन सोबत सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचंय. टेलिव्हिजन जेव्हा तुम्ही म्हणताय तेव्हा तुम्हाला नेहमी वॉच हा शब्द वापरायचा आहे. आपण पाहण्यासाठी सी हा शब्द तुम्ही सहज वापरताय. ओके, बट टेलिव्हिजन सोबत वॉच हा शब्द वापरायचा आहे. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. येस, अजून कोणीतरी हँड रेज केलाय बहुतेक. स्वाती मॅडमचाच आहे मगाचा. या, so the next word we will go for speakers. Chalo, make the sentences speakers. You can raise the hand. Yes, Deepika. There is loud music on speakers. Very good. There is loud music on speakers. And Prathamesh has also written something. Please on the speaker. So Prathamesh, you have to say please switch on or put on. Okay. Please switch on the speaker or put on the speaker. Very good. Nice. Then other people, please raise your hands. Or else, okay, I'll ask. We have one more student here. Yeah, Usha Badole. Put on your mic. Yes. Use that word in the sentence. नाव सांग बाळा तुझं. मला नाव लक्षात नाही. Avika. Hello, ma'am. Hello. Hello. Varsha madam, please put on your mic. Keep the volume of speaker low. Yes. Keep the volume of speakers low. Very good. Swati madam. Don't listen loudly. Speaker. नाही, तुम्ही असं म्हणू शकता डोंट लिसन लाऊड म्युझिक ऑन स्पीकर. म्हणजे स्पीकरवर खूप मोठ्याने गाणी किंवा एखादं संगीत ऐकू नका. ओके, तिथे काहीतरी शब्द टाकावा लागणार. सो वी कॅन ऍड म्युझिक. ओके, हा. या, ओके. देन तन्वी. Okay, others are not responding, so we will move to the next picture, and that picture is refrigerator. Okay, refrigerator. Yes, now make the sentences. Yes, Tanvi. I
I take new refrigerator. आय टेक म्हणजे काय होतं की हा होतो साधा वर्तमान काळ, सिम्पल प्रेझेंट टेन्स, अँड दॅट इज यूज फॉर जनरली हॅबिट्स. ज्या गोष्टी नेहमी घडतात त्यांच्यासाठी वापरतो आपण, बरोबर आहे. आपण नेहमी घेतोय का नवीन रेफ्रिजरेटर? नाही. एकतर तुम्ही घेतला किंवा घेणार आहात, मग त्यानुसार तुम्हाला काळाची रचना करायची आहे. म्हणजे यू हॅव टू यूज द टेन्स अकॉर्डिंगली. सो यू कॅन से I have taken or I have bought new refrigerator. ओके, म्हणजे मी नवीन रेफ्रिजरेटर घेतला होता किंवा मी नवीन रेफ्रिजरेटर घेईन असं बोलायचं असेल तर आय विल बाय न्यू रेफ्रिजरेटर. ओके, क्लिअर? देन नाऊ वी हॅव, बऱ्याच जणांनी हँड रेज केले. दीपिका, Ma'am, या. close the door of refrigerator. Yes, close the door of refrigerator. And Prathamesh has written one sentence. Refrigerator is very useful for kitchen. Very nice, Prathamesh. Very good. Varsha madam? Don't drink refrigerator water. Yes, don't drink रेफ्रिजरेटेड बोलू शकता, म्हणजे जे थंड केलेलं असतं. ओके, किंवा डोंट ड्रिंक. जर तुम्हाला फक्त रेफ्रिजरेटर जसाच्या तसा शब्द वापरायचा आहे तर तिथे फ्रॉम वापरूया आपण. डोंट ड्रिंक वॉटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर. ओके, देन एनीबडी एल्स? स्वाती मॅडम? Refrigerator very useful in all women's. वुमेन. रेफ्रिजरेटर इज व्हेरी युजफुल फॉर ऑल विमेन, पण असं नाहीये ना सगळेच जण वापरतात. सो फॉर ह्युमन बिंग म्हणू शकता तुम्ही, म्हणजे आपल्या सगळ्यांसाठीच रेफ्रिजरेटर खूप उपयोगी आहे, बरोबर? हो. या. देन वी विल गो फॉर मेनका मैडम. देखते हैं आपका नेटवर्क स्टेबल हुआ क्या? अभी तो नहीं लग रहा है क्योंकि आप बहुत बार अंदर बाहर ही कर रहे हो, बट लेट्स चेक. आपका माइक ऑन कीजिए. मेनका मैडम, कैन यू हियर मी? या, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आई थिंक नो, आपका नेटवर्क अभी भी अनस्टेबल है. तो विल डू वन थिंग, आई मीट यू. या, and we will move to the next word. Yeah, your next word is cold drink. कोल्ड ड्रिंक म्हणजे शीतपेय, थंड वगैरे जे तुम्ही पिता, that is cold drink. So who will tell me the sentence using cold drink? Deepika? Ma'am, Yeah. I like cold drinks. Yes, I like cold drinks. Very good, very easy and very nice, simple. Then others? चलो फटाफट. वर्षा मैडम? When I'm thirsty, I drink cold drink. ओके, वेन आय गेट थर्स्टी म्हणजे जेव्हा मला तहान लागते, आय ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक. व्हेरी गुड. देन तन्वी? प्रथमेश, कम ऑन, राइट इट. स्वाति मैडम? Fruity is my favorite cold drink. Very good. Fruity is my favorite cold drink. Very nice. Good. Anybody else want to tell anything? Okay. This is now, I think, our last picture. That is fry pan. चला, आता फ्राय पॅन हा वर्ड वापरायचा आहे तुम्हाला तुमच्या सेंटेन्स मध्ये. तन्वी, ओके.
Yes, Tanvi. I use frying pan in kitchen. Yes, I use fry pan in kitchen किंवा frying pan पण चालेल. In kitchen. Deepika. Fry pan are useful to make dosa. व्हेरी गुड. आता फ्राय पॅन म्हणाली तू, मग आपण आर वापरणार की इज वापरणार? Is येस येस. जेव्हा तुम्ही सिंग्युलर वर्ड वापरता एखादा ऑब्जेक्टचा किंवा एखादा नाउन जेव्हा सिंग्युलर फॉर्म मध्ये वापरता तेव्हा इज वापरायचा आहे. आणि जर तुम्ही प्लुरल फॉर्म मध्ये वापरता, इफ यू आर गोइंग टू यूज इट इन अ प्लुरल फॉर्म, यू हॅव टू यूज आर. ओके. सो फ्राय पॅन इज यूज फॉर फ्राय or making dosa. Okay, good girl. Then Nalavade madam. I fry fish on fry pan. Yes, very good. I fry fish on fry pan. Mohite madam. I use fry pan for making dosa. Very good. I use fry pan for making dosa. Very nice. Then Prathamesh has written something. We'll check. Fry pan is used for frying. Yes, that is very easy and very simple. Nice sentence. की fry pan चा उपयोग frying साठी करतात. Very good, Prathamesh. Then anybody else? Pratiksha? You are joined after so long, so you want to tell us something? Is your network stable? If yes, and if you can listen me, please switch on your mic, Pratiksha. I think Pratiksha is not able to hear me. So we'll move on, okay? Okay, Menoka madam is also typing here. Very good. Fry pan is for frying the food. Very good, madam. Good. Okay. Now we'll move on the next slide. Here we have completed, I think, all the pictures. Okay. So our second topic was helping verbs. Okay. Practice for helping verbs. See. What are helping verbs? You have been using them since long. Okay. आप हमेशा इसको यूज करते हो. So helping verbs होते क्या है? Helping verbs are verbs that are usually used with a main verb in a sentence to express an action or state. Okay. Main verb से पहले या मेन वर्ब के साथ ये यूज होता है हेल्पिंग वर्ब. जैसे यहाँ पे आप पढ़ोगे उसके एग्जाम्पल्स तो आपको याद आ जाएगा. बी, बीइंग, बीन, was, were, am, is, are, do, does, did, have, has, had, may, might, must, should, would, could, will, can, shall. ये सब क्या है? ये सब है हेल्पिंग वर्ब्स. आपको याद है हम लोग हमेशा यूज करते हैं इनको, राइट? अभी भी आप लोगों ने जितने सेंटेंसेस बनाए उन सब में आपने कुछ ना कुछ इनमें से यूज भी किए हैं. तो इनको थोड़ा आज प्रैक्टिस करेंगे. इन विच वे? What we will do? We will take some exercises and there you have to use the proper helping verb. Okay. So before going to the next slide, please let me know whether I am audible clearly. Please type in the chat box, am I audible clearly? Yes, because there is some network variation. Okay. So if there is some problem, please let me know. Thank you. Thank you. See, so I hope you all know them. So we'll directly move on to the exercise. Okay. Now what you have to do, you all will write the answer in chat box. आप सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर लिखोगे. यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें से हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है. तो आपको क्या करना है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, देखो नीचे ए बी सी डी. उसमें से यू हैव टू चूज द करेक्ट वन. ओके.
सो यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं, चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू प्रॉपरली कंप्लीट द ईच सेंटेंस। सब सेंटेंस को, हर एक सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है विथ प्रॉपर या करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। ओके, यहाँ पे नीचे 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आई विल रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। द सैक्सोफोन प्लेयर dash performing a solo. Please read the sentence carefully. Okay, you have to identify the tense also. यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, उसके साथ टेंस की भी प्रैक्टिस हो रही है। तो आपको टेंस आइडेंटिफाई करके ही इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। ओके, द सैक्सोफोन प्लेयर डैश परफॉर्मिंग अ सोलो। आपके ऑप्शन है कुड, हैज, विल एंड इज। तो देखिए, देखते हैं हम लोग किसने करेक्ट आंसर लिखा है। आई विल शो यू द आंसर्स। इज, ओके, इज इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस। जिन्होंने भी आंसर दिया है, द सैक्सोफोन प्लेयर इज परफॉर्मिंग अ सोलो। क्यों इज लिखा हम लोगों ने? क्योंकि यहाँ पे जो आपका वर्ब, मेन वर्ब क्या है? परफॉर्म, और परफॉर्म के साथ आईएनजी लिखा हुआ है, और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि आईएनजी होगा तो एम, इज, आर या वॉज वेयर, जो भी ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे एम, इज, आर और वॉज वेयर में से सिर्फ इज अवेलेबल है, बाकी जो 3 ऑप्शन है दे आर नॉट सुटेबल, सो वी हैव यूज्ड हियर इज। वेरी गुड। आप सबने जिन्होंने भी आंसर दिया है, करेक्ट आंसर है एंड रियली गुड। देन विल मूव टू द सेकेंड वन। सॉरी, डैश यू होल्ड दिस अदर आइसक्रीम कोन फॉर मी। डैश यू होल्ड दिस अदर आइसक्रीम कोन फॉर मी। क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखिए, उस लड़के के हाथ में 2 आइसक्रीम कोन है और वो पूछ रहा है उसमें से कोई एक होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए बोल रहा है। तो कैसे पूछेगा? ऑप्शन है आर, कैन, वेयर एंड डज। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? वेरी गुड, कैन। मेनोका मैडम, इट विल बी कैन। ओके, यस, गुड। तो सेंटेंस आएगा, कैन यू होल्ड दिस अदर आइसक्रीम कोन फॉर मी। क्या आप मेरे लिए ये आईस्क्रीम का कोन पकड़ सकते हैं? तुम्ही माझ्यासाठी हा पकडू शकता का, असं विचारतात की नाही. सो कॅन. द थर्ड वन इज, इफ द वेदर इज हॉट टुडे वी डॅश प्ले इन द रिवर. इफ द वेदर इज हॉट टुडे वी डॅश प्ले इन द रिवर. ऑप्शन है आपके वेयर, हैव, विल एंड आर। चलिए लिखिए चैट बॉक्स में आंसर। मैं ऐसे ही रख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, आप पढ़ो आराम से और फिर आंसर लिखो। ओके, नाउ आई चेक द आंसर। वेरी नाइस, वी विल। लिखा क्या है यहाँ पे? अगर आज, इफ द वेदर इज हॉट टुडे, मतलब अगर आज गर्मी रही तो हम क्या करेंगे? नदी में खेलने जाएंगे। वी विल प्ले इन द रिवर। ओके, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, Steve Dash dressed as a cowboy every Halloween since he was a child. अभी आप सबका ये पार्ट भी हो चुका है, देखते किसको याद है दिस टाइप ऑफ टेंस, किसको याद है? Steve Dash dressed as a cowboy every Halloween since he was a child. अभी यहाँ पे एक ट्रिक भी आपको बता देती हूँ। सिंस वर्ड आया है तो क्या यूज करते हैं हम लोग? सोचो और लिखो।
चलिए बाकी लोग भी लिखिए. Then only I will tell your given option is correct or what not. Very nice. Everybody has written has been, and that is the correct answer. Steve has been dressed as a cowboy every Halloween since he was a child. Very good. Number 5. Tanya liked the dress you gave her for her birthday. Dash Tanya liked the dress you gave her for her birthday. ओके. तानियाला तुम्ही बर्थडे साठी दिलेला ड्रेस आवडला का असं विचारायचं आहे. तर कशाने क्वेश्चन चालू होणार? वॉज, हॅज, डिड, डू. वॉज, हॅज, डिड, डू. व्हॉट विल बी द ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन. Very good. Did. Very nice. Did Tanya like the dress you gave her for her birthday? Very nice. Next one. We dash have a small problem in the chemistry lab. We dash have a small problem in chemistry lab. Options. Did, where, have, might. Oh, there are many options you are given. Might, where, might, might. Might is the correct answer. Okay. We might have a small problem in chemistry lab. म्हणजे आपल्याला केमिस्ट्री लॅब मध्ये थोडासा काहीतरी अडचण असू शकते असं बोललं गेलंय. मग त्यासाठी आपण काय शब्द वापरतो? माईट. मेचा भूतकाळ आहे माईट. ओके. हे सुद्धा आपण सगळं शिकलेलो आहोत. Now we'll move on the next one. When our jeep came close, the tiger looked like it dash woken up from a nap recently. म्हणजे आमची जीप, हमारी जीप जब नजदीक गई तो टाइगर ऐसे दिख रहा था जैसे वो अभी अभी नींद से जागा है. So what will be the correct option? Had, has, did, was. मराठीत असं येणार की जेव्हा आमची जीप जवळ गेली तेव्हा आता जसा की तो नुकताच झोपेतून उठला आहे. काय येणार सांगा मला? Had, has, did, was. Very good. Has. Was is not correct answer, वर्षा मॅडम. It will be has. कारण बघा सेंटेन्स मध्ये वोकन अप म्हणजे थर्ड फॉर्म वापरलेला आहे. ओके. म्हणून मी आधीच सांगितलं की सगळ्यांनी सेंटेन्स केअरफुली वाचायचंय. त्याचा टेन्सचा कुठला टाईप आहे तो बघायचा आहे आणि त्यानुसारच ऑप्शन चूज करायचंय. तो हॅज इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हेरी गुड. HAS हॅज. बी. नंतर नंबर 8 बघूया. यू लुक कोल्ड. डॅश यू लाईक टू बॉरो अ स्वेटर. आय हॅव लॉट्स ऑफ देम. म्हणजे तुला थंडी वाजते असं दिसतंय. मग तुला स्वेटर हवा आहे का? माझ्याकडे खूप आहेत. तर मग कसं विचारणार आपण? हॅव, वुड, डू और आर. काय येणार ऑप्शन नंबर 8 साठी करेक्ट ऑप्शन? नो. इथे तुम्ही सगळ्यांनीच चूक केली आहे. आपण वुड, शूडचा वापर शिकलो, आठवतं तुम्हाला? वुड यू लाईक टू हॅव कॉफी, वुड यू लाईक टू हॅव टी. जेव्हा तुम्हाला एखाद्याला असं काही विचारायचं असेल की तुम्हाला हे पाहिजे का, तर आपण वुड वापरतो. वुड यू लाईक टू बॉरो अ स्वेटर.
डू यू नाही. डू यू म्हणजे आपण नेहमीसाठी वापरतो. म्हणजे तुला नेहमी स्वेटर घ्यायला आवडतं का, असं असं विचारलं जातंय. ते बरोबर आहे का? आपल्याला असं विचारायचं का? नाही. आपल्याला त्या सिच्युएशनला, त्या माणसाला हे विचारायचंय की तुम्हाला थंडी वाजतेय, माझ्याकडे बरेचसे स्वेटर आहेत, तुम्हाला एखादा घ्यायला आवडेल का त्यापैकी? मग तिथे ऑप्शन येणार वुड. इज इट क्लिअर टू एव्हरीवन? वाय इट विल बी वुड, नॉट डू, इट विल बी वुड. आया समझ में सबको? यस और नो लिखो चैट बॉक्स में. यस, गुड. और ध्यान में भी रखना है, ठीक है? आप यहाँ पे जो भी पढ़ रहे हो, जो भी करेक्शंस आपको बताए जाते हैं, तो प्लीज ध्यान में रखो, ताकि आगे जब आप, अब मिस्टेक हुआ नो प्रॉब्लम, वो तो मिस्टेक रिपीट नहीं होना चाहिए. राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Yeah, number 9. It is the last sentence. I did not break the window. Bobby and I dash reading a book together very quietly in the living room. Okay? I did not break the window. मी खिडकी तोडली नाही किंवा खिडकीची काच फोडली नाही. बॉबी अँड आय, मी आणि बॉबी, रीडिंग अ बुक टुगेदर, आम्ही काय करत होतो? आम्ही पुस्तक वाचत होतो. व्हेरी क्वाइटली इन द लिव्हिंग रूम. आम्ही लिव्हिंग रूम मध्ये म्हणजेच हॉलमध्ये बसून काय करत होतो? शांतपणे पुस्तक वाचत होतो. मी खिडकी फोडली नाही किंवा काच फोडली नाही. तर काय येणार इथे ऑप्शन? हॅड, डिड, कुड, वेअर. बॉबी अँड आयच्या पुढे काय येणार? नीट शांतपणे वाचो सेंटेन्स. पहिल्या सेंटेन्सचा काहीच संबंध नाहीये. सेकंड सेंटेन्स जे आहे तिथे तुम्हाला वापरायचं आहे. पहिल्या सेंटेन्सचा संबंध फक्त एवढाच आहे की त्याचा टेन्स जो आहे तो तुमच्या सेकंड सेंटेन्स साठी इम्पॉर्टंट आहे. येस, व्हेरी गुड. वेअर. ओके. हॅड नाही येणार वर्षा मॅडम, वेअर येणार. कारण पहिलं सेंटेन्स जे आहे ते सिंपल पास्ट मध्ये आहे. आय डिड नॉट ब्रेक द विंडो, मी खिडकी तोडली नाही. मग आम्ही दोघं काय करत होतो? तर आम्ही पुस्तक वाचत होतो. सो बॉबी अँड आय वेअर रीडिंग अ बुक टुगेदर. ओके, सो वेअर येणार तिथे. सो वेरी गुड किड्स, जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है. ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, this is now our third part of today's lecture, that is, what was it? Conversation. Okay, conversation is basically आप लोग जब डायलॉग राइटिंग वगैरह करते हो इंग्लिश ग्रामर में, it is the same. So let's see what is today's conversation about. Yeah, this is conversation about the complaint. एक कंप्लेंट है फॉल्टी इक्विपमेंट. फॉल्टी मतलब इसमें कुछ बिघाड हुआ है, ज्याच्यामध्ये काहीतरी बिघाड झालेला है. ओके, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, ऐसा इक्विपमेंट वापस करने गए हैं या उसको रिपेयर करने के लिए गए हैं. तो जो दुकानदार होता है, शॉपकीपर, और कस्टमर जिसकी चीज खराब हुई, उन दोनों में क्या कन्वर्सेशन होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है. तो व्हाट आई विल डू, I will read it, I will explain it, and then what we will do? We will make the pairs and then you have to converse with each other. Okay? So listen carefully. Again tell me whether I am clearly audible. Am I audible? Yeah. Sorry, I am checking this again and again, but I don't want to create any problem. Okay? See. Here S is for shopkeeper and C is for customer. Okay? So first of all, जब हम लोग दुकान में जाते हैं तो दुकानदार हमसे बात करते हैं ना, आइए क्या चाहिए आपको वगैरह, वहां से शुरुआत होती है. तो यहाँ पे भी देखिए शॉपकीपर सेज गुड मॉर्निंग मैडम. मैडम इसीलिए लिखा है मैंने कि
जनरली अभी बहुत दिनों से हमारे क्लास में सिर्फ लेडीज ही है, तो यहाँ पे अगर जेंट्स है तो हम लोग सर भी बोल सकते हैं। ओके, सो शॉपकीपर सेज गुड मॉर्निंग मैडम, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सो कस्टमर सेज गुड मॉर्निंग, लास्ट मंथ आई बॉट अ मिक्सर ग्राइंडर फ्रॉम योर शॉप। गुड मॉर्निंग, पिछले महीने मैंने आपसे एक मिक्सर ग्राइंडर खरीदा था, बट इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, बट वो अभी ठीक से काम नहीं कर रहा। सो शॉपकीपर आस्क व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इट? क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्या खराबी हुई है? सो कस्टमर अभी एक्सप्लेन कर रहा है। अभी आपको पता है मिक्सर ग्राइंडर घर में मम्मी यूज करती है चटनी वगैरह बनाने के लिए, बाकी भी बहुत सारे मसाले या बहुत सारी चीजें ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए उसको यूज किया जाता है। ओके, तो हियर वो अभी जो लेडी आई है कस्टमर, वो एक्सप्लेन कर रही है कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए, इट डज नॉट ग्राइंड द थिंग्स प्रॉपरली। वो क्या कर रहा है, उसका जो ग्राइंडिंग का काम है वो अच्छे से नहीं कर रहा है। इवन द मशीन ऑफ द मिक्सर ग्राइंडर गेट्स हॉट इफ वी यूज इट मोर देन 10 मिनट्स। और अगर हम लोगों ने 10 मिनट से ज्यादा उसको इस्तेमाल कर लिया तो उसकी जो मशीन है वो क्या होने लगती है, गर्म होने लगती है। ओके, इट गेट्स हॉट। सो शॉपकीपर अभी क्या बोलता है, देखिए, इज योर मिक्सर ग्राइंडर अंडर वारंटी पीरियड? क्या आपका मिक्सर ग्राइंडर जो है वो वारंटी पीरियड में है? तो कस्टमर बोलता है यस इट इज अंडर वारंटी। मतलब अभी उन्होंने बोला ही है ना पहले ही कि पिछले मंथ ही खरीदा है, और जनरली किसी भी चीज इलेक्ट्रॉनिक्स पे कम से कम 6 महीने की तो गारंटी या वारंटी जो है वो रहती ही है। ठीक है, तो शी सेज यस इट इज अंडर वारंटी। नाउ शॉपकीपर विल गिव सम एक्सप्लेनेशन। पढ़ते हैं, देखिए। Okay, then you have to give me a warranty card and leave the grinder. I will contact the company regarding the problem. Only then we can tell you what we can do for you. ठीक है, अभी हमेशा की तरह शॉपकीपर ने उनको एक आंसर दे दिया कि आपको वारंटी कार्ड देना है, और ये जो मशीन है आपकी ग्राइंडर मशीन, या आपका सॉरी ग्राइंडर जो है मिक्सर ग्राइंडर, वो आपको यहीं पे दुकान में छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, कंपनी से, मतलब जहां से ये खरीदा जाता है, कौन खरीदता है, शॉपकीपर। तो जहां से ये आता है उस कंपनी को मैं ये प्रॉब्लम के बारे में बता दूंगा, और फिर उनसे जब रिप्लाई आएगा तभी मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या कर सकते हैं। ओके, तो अभी कस्टमर पूछ रही है सो व्हेन आई कॉन्टेक्ट यू अबाउट द सेम। कि यहाँ पे एक वर्ड, देखिए हेल्पिंग वर्ब भी मिसिंग कर दिया मैंने। When can I contact you about the same? ओके, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, when के बाद can आना जरूरी है। ओके, सो when can I contact you about the same? मैं आपको कब मिलूं या आपको कब फोन करूं इसके बारे में? तो शॉपकीपर बोलता है यू कैन कॉन्टैक्ट मी टुमारो। आप कल मुझे मिलिए। तो अभी देखिए, ये पहला दिन गया। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन कस्टमर फिर से दुकान में जाते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सो शॉपकीपर से गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कस्टमर सेज आई विजिटेड टू योर शॉप यस्टरडे रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ मिक्सर ग्राइंडर। मैं कल आपकी शॉप में आई थी, किस लिए? मिक्सर ग्राइंडर का प्रॉब्लम बताने के लिए। सो ही सेज यस आई गॉट इट, मतलब यस यस मुझे याद आ गया। सो अभी कस्टमर पूछती है सो हैव यू गॉट एनी सॉल्यूशन फॉर द सेम? क्या आपको उसका कुछ आंसर जवाब मिला, क्या कर सकते हैं? तो शॉपकीपर सेज यस आई कॉन्टेक्टेड टू द कंपनी and they said that they have to change some parts and your grinder is fixed after that. तो क्या बोलता है शॉपकीपर कि मैंने कंपनी को कांटेक्ट किया है और उन्होंने बोला है कि कुछ पार्ट्स को बदली करना पड़ेगा और फिर आपका मिक्सर ग्राइंडर अच्छा हो जाएगा, काम करने लायक हो जाएगा। ओके, सो कस्टमर सेज व्हाट अ रिलीफ, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गेट फिक्स। तो उसको पहले अच्छा लगा, व्हाट अ रिलीफ, मतलब अच्छा लगा मुझे ये सुनकर कि वो ठीक होने वाला है।
बट उन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछा एक साथ में, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गेट फिक्स्ड, उसको ठीक होने में कितना समय लगेगा। सो शॉपकीपर सेज इट विल टेक 2 days फॉर फिक्स द सेम। कितना समय लगेगा, 2 दिन का समय लगेगा, 2 days। सो कस्टमर सेज I have a restaurant, so I needed it so much. How can I manage for 2 days without mixer grinder? अभी कस्टमर का भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि उनका खुद का एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में खाने के चीजें बनाने के लिए उनको मिक्सर ग्राइंडर की जरूरत है। उस चीज से सो आई नीडेड इट सो मच, हाउ कैन आई मैनेज फॉर 2 days विदाउट मिक्सर ग्राइंडर, और 2 दिन में बिना मिक्सर ग्राइंडर के कैसे मैनेज करूंगी। तो अपने शॉपकीपर भाई साहब बड़े अच्छे हैं, देखिए व्हाट ही से, यू डोंट नीड टू हैव वरी, ओके, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। टिल देन आई विल गिव यू अ सेकेंड हैंड पीस, यू कैन यूज इट। जब तक आपका मिक्सर ग्राइंडर रेडी होके नहीं आता, ठीक होके नहीं आता, मैं आपको मेरे पास एक सेकेंड हैंड मिक्सर ग्राइंडर है वो दे दूंगा, वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। ओके, सो कस्टमर बहुत खुश हो जाते हैं। व्हाट अ ग्रेट प्लेजर, आई रियली लाइक योर सर्विसेज। ओके, और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। सो लास्ट या लास्ट सेंटेंस है, शॉपकीपर डायलॉग है, बोलता है, थैंक यू मैम टू कोऑपरेट विथ अस एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, आपको हमारी वजह से या उस मशीन की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द कन्वर्सेशन। हैव यू अंडरस्टूड कि एक सिंपल कन्वर्सेशन है, यहाँ पे एक मशीनरी खराब हुई है, वो ले जाके हम लोग जहाँ से खरीदी है वहां पे लेके गए हैं उस दुकान में, और फिर उनके बीच में वो कैसे ठीक होगा, कब मिलेगा, ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो वही कन्वर्सेशन यहाँ पे हम लोगों ने लिया है। तो विल सी कौन कौन है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, वी हैव दीपिका, वर्षा मैडम, प्रथमेश, स्वाति मैडम, तन्वी। तो प्रथमेश का माइक तो वर्क नहीं कर रहा है, तो आज एक काम करते हैं, आज वी विल डू वन थिंग, बड़े लोगों के साथ छोटे लोग, छोटे बच्चे जो है वो कन्वर्स करेंगे। इज इट ओके? लिखिए चैट बॉक्स में, अगर हम लोग ऐसे पेयरिंग करेंगे तो चलेगा। वर्षा मैडम, स्वाति मैडम, डू यू एग्री? यस, तो फर्स्ट पेयर विल बी वर्षा मैडम एंड दीपिका, एंड सेकेंड पेयर विल बी स्वाति मैडम एंड तन्वी। ठीक है, तो वर्षा मैडम एंड दीपिका प्लीज स्विच ऑन योर माइक्स, आपको ये कन्वर्सेशन कंप्लीट करना है। और एक बात, पहले शॉपकीपर रहेगा आप में से वर्षा मैडम, एंड दीपिका विल बी कस्टमर। उसके बाद हम लोग स्वाति मैडम का और तन्वी का लेंगे, उसके बाद अगर टाइम मिला तो स्विच ओवर कर लेंगे। फाइन, तो चलो स्टार्ट। Okay. Good morning, madam. How can I help you? Good morning. Last month I bought a mixer grinder from your shop, but it is not working properly. What is the problem with it? It does not grind the things properly. Even the machine of mixer grinder gets hot if we use it more than 10 minutes. Is your mixer grinder under warranty period? Yes, it is under warranty. Okay. Then you have to give me a warranty card and leave the grinder. I will contact the company regarding the problem. Only then we can tell you what we can do for you. So when I contact you about the same? You can contact me tomorrow. Hello sir, good morning. Good morning. How can I help you?
I visited to your shop yesterday regarding the problem of mixer. Yes, I got it. So have you got any solution for the same? Yes, I contacted to the company and they said that they have to change some parts and your grinder is fixed after that. What a relief. How long it will take to get fixed? It will take 2 days to fix the same. I have a restaurant, so I needed it so much. How can I manage for 2 days without mixer grinder? You don't you don't need to have worry. Till then, I will give you a second hand piece. You can use it. What a great pleasure. I really like your services. Thank you, ma'am, to cooperate with us and sorry for inconvenience. Very nice. Very good. Deepika, your conversation skills are very nice. Very good. Then now you both can switch off your mic, and Tanvi and Mohite madam. Please switch on your mics. हॅलो. हा शॉपकीपर हा. ना. येस मॅम. आपण पहिल्यांदा असंच जाऊया, नंतर आपण वेळ मिळाला तर चेंज करू. ओके. सो नाव यू कॅन स्टार्ट विथ शॉपकीपर डायलॉग्स. गुड मॉर्निंग मॅडम. हाऊ कॅन आय हेल्प यू? Good morning. तन्वी. Last month I got a mixer grinder from your shop, but it is not एक मिनिट तन्वी, तुझ्या माईक मधनं खूप डिस्टर्बन्स येतोय. तर फोन एका ठिकाणी शांत ठेवायचंय आणि त्याला हात न लावता बोलायचंय. सेटल्ड? माईक लावलेला आहे का तू? हेडफोन वापरतेस? एवढा आवाज का येतोय? ठीक आहे, आता परत चालू कर बघू. नो 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 नो. इट इज व्हेरी डिस्टर्बिंग. व्हेरी डिस्टर्बिंग. माईक बंद कर बाळा तुझा. येस. स्वाती मॅडम, हा आपण एक काम करूया, तुम्ही आणि वर्षा मॅडमचं घेऊया आपण. ओके. हो चालेल. हा, सो स्टार्ट करा. हा. गुड मॉर्निंग मॅडम. हाऊ कॅन आय हेल्प यू? Good morning. Last month I bought a mixer grinder from your shop, but it is not working properly. What is the problem with it? It does not grind the things properly. Even the machine of mixer grinder gets hot if we use it more than 10 minutes. Is your mixer grinder under warranty वॉरंटी. warranty period? Yes, it is under warranty period. Okay, then you have to give me a warranty card and leave the grinder. I will contact the company regarding the problem. Only then, only then we can tell you what we can do for you. So when can I contact you about the same? You can contact me tomorrow. सॉरी, एक मिनिट. येस, कंटिन्यू. वर्षा मॅडम. Yes. Hello sir. Hello madam. Good morning. Good morning. How can help you? I visited to your shop yesterday regarding the problem of mixer grinder.
Yes, I got it. So have you got any solution for the same? Yes, I contact to the company, Contacted. and they said that they have to change some part, and your grinder is fixed Six. Huh. after that. What what a relief. How long it will take to get fixed? It will take 2 days to fix the same. I have I have a restaurant, so I needed it so much. How can I manage for 2 days without a mixer grinder? You don't need to have worry. Till then, I will give you a second hand piece. You can use it. What a great pleasure. I really like your service. Thank you. Thank you, madam, uh, to cooperate with us, and sorry for in Inconvenience. inconvenience. Yes. Thank you so much. So, here we have completed today's class. Please switch off your mic. See what we have seen today. We have seen few words which you use in the sentences. Then we have seen the helping verbs. We have taken some sentences regarding that. Then we took one conversation. Okay. So what you have to do, you have to practice the same at home. Fine. I will share this on the group. So you have to practice it. And please watch the previous videos. आपको पिछले वीडियोस भी देखने हैं ताकि आप प्रैक्टिस में टच में रहे। अगर पिछले वीडियोस देखते वक्त आपको फिर से कुछ डाउट्स आए, कुछ प्रॉब्लम्स लगे तो आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ। ओके, एंड वी विल सॉल्व देम अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर्स। बट आपको पहले लेक्चर्स, आगे वाले लेक्चर से पहले मुझे वो शेयर करने पड़ेंगे, ठीक है? सो आई विल कम हियर। Deepika, Varsha madam, Prathamesh, Swati madam and Tanvi. Thank you so much for attending the class. अभी हम लोग क्लास क्लोज कर देते हैं. You all can leave. Please take care of yourselves. Good night. Bye bye. Bye, ma'am. Good night. Bye bye. Good night. Yes, good night. Bye bye.